Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our subsequent part of chapter triangle, and we will do in this part question number 4, 5, 6, and 7. And we have done already question number 1, 2, 3 in the previous part. So let us begin our practice set 3.1. In that, the first question is given. Measure of one of the angle of triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of other is twice the measure of the smallest angle. Find the measure of the triangle. Means a triangle is there. In that one angle is a small one. उसमें से एक एंगल सबसे स्मॉलेस्ट है, तो एक जो दूसरा एंगल है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का कितना है, ट्वाइस है, और जो तीसरा एंगल है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है. तो फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल. तो बताओ तीनों जो एंगल हैं उनका मेजर कितना होगा. सो लेट अस बिगिन. लेट्स द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री. मान लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का कितना मेजरमेंट होगा, x डिग्री. सो देयरफॉर द measure of other two angles. अब बताओ अदर टू एंगल्स क्या होंगे, बताइए. x का ट्वाइस कितना होगा, 2x, एंड ये जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है इसका ट्वाइस कितना होगा, 3x. ठीक है, तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट x है तो उसका ट्वाइस होगा 2x और उसका ट्वाइस होगा 3x. नाउ वी नो वेल, if we add all the angles of triangle, it gives us equal to 180 degree, because the sum of angle of triangle is always 180 degree. So right here, f degree plus 2x plus 3x is equal to 180, and here you will write the region sum of measure of all angles of triangle is 180 degree. Now 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. It will be 6x is equal to 180. Now this is multiplied on this side, this will get divide. So 180 divided by 6. 6 is 18. So here x will come 30. So the remaining two angles कितने होंगे, एक 2x है, मतलब 2 into 30 degree, this will come 60 degree. Third one 3x, 3 into the value of x we got here, it is 30. 30 is 90 degree. So therefore the measure of angles of triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree respectively. So I hope question number 4 आपको समझ में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, आपको ये डायग्राम दिया गया है और इसमें कुछ मेजरमेंट भी दिए गए, and based upon this measurement and diagram you have to find out what will be the value of angle x, angle y and angle z. तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो this angle and this angle is forming an angle in linear pair, and the sum of the linear pair angle is always supplementary. So let us begin with itself. आप लिख सकते हो मेजर एंगल NEM plus measure angle NET is equal to 180 degree. And what is the reason here? Angles in linear pairs. Now measure angle NEM मतलब क्या है, आपका कौन सा मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है, y. और NET it is given in question, it is 100 degree. So write down here 100 degree is equal to 180. This is plus 100. On this side this will be minus 100. So how much the value of x will come here, 80 degree.
हियर वी फाइंड आउट आवर फर्स्ट वन, हियर y, हमने y को यहाँ फाइंड आउट कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एंगल और ये एंगल, ये भी कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हो मेजर एंगल EMN प्लस मेजर एंगल EMR is equal to 180. Here also you will write same reason, angles in linear pair. Now मेजर एंगल EMN कौन सा एंगल है, Z, तो लिखो यहाँ पे Z। और EMR it is given in question 100, so write down 100 is equal to 180. You can write here given. Here also you can write here given. Okay. Now this is plus. On this side it will get minus. So Z is equal to 180 minus 100. So how much Z will come? It will come 80 degree. Let me clear one more thing. Sorry, in your question it is given 140. So right here it is 140. Here also you will write 140. So after subtracting you will get your answer here 40 degree. Now the value of y we got here, the value of z we got here. Now what is the remaining here? X. So write down in triangle EMN, the measure of all the angles will be 180 degree. Okay, so write down here measure angle NEM plus measure angle EMN plus measure angle ENM is equal to 180. Write down here sum of measure of all angles of triangle is 180 degree. Okay, you can give it equation 1, equation 2. Now NEM is your y. Write down here y. EMN it is your z. Write down here z. And ENM it is your x. Write down here x is equal to 180. Now the value of y is here 80. So write down here 80. The value of z is here 40. Write down 40 plus x is equal to 180. How we come to know? From equation first and second. Now add up all this. 80 plus 40, 120 plus x is equal to 180. This is plus 120. On this side this will be minus 120 degree. So the value of x will be 60. So माइंड में डियर स्टूडेंट, हम लोग ने यहाँ पर अपने तीनों एंगल को फाइंड आउट कर लिया। कौन से एंगल? एंगल x, एंगल y और एंगल z। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये आपको एक डायग्राम दिया गया है और इसमें लाइन ए बी पैरेलल किसके है, लाइन बी के, और आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है। तो इसके बेस पे आपको मेजर एंगल DRE ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है ARE, ये दोनों मेजर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। This angle and this angle is forming a shape of Z and it is alternate angle, and the measure of alternate angle is always congruent. So let us begin with this solution. Line AB parallel line DE and line AD is transversal. Okay, you can also write here given, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आपको इन्होंने लाइन दिया गया है पैरेलल, तो आप इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हो। सो मेजर एंगल BAD किसके बराबर होगा, EDA, और दोनों के दोनों कितने होंगे, 70। रीजन क्या है, अल्टरनेट
एंगल, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। अब आपको पता चल गया कि ये कितना है 70, तो अब इसके बेस पे अगर आप एक ट्राइंगल ले लो DRE, आपको दो एंगल मालूम है तो आप तीसरा एंगल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो लिखोगे आप इन ट्राइंगल DRE मेजर एंगल DRE प्लस मेजर एंगल RDE plus major angle DER is equal to 180, and here also you will write the same region, the sum of measure of all the angle for triangle is 180। DRE हमें नहीं मालूम है, हम वैसे ही लिख देते हैं। RDE देख लो, RDE आपको क्वेश्चन में ये देखिए RDE, ठीक है, RDE ये हमने कितना निकाला है यहाँ पर देखिए। आप चाहिए तो EDA बोलिए या आप EDR बोलिए, दोनों में यही से एंगल सेम आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो RDE कितना है 70 डिग्री, ठीक है। और कौन सा भी अपना बच गया DER ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया गया है 40 इज इक्वल टू 180। आप चाहिए तो इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो A', R', D, ठीक है। चाहे मैं EDR बोलूँ या मैं RDE बोलूँ, एंगल सेम रहेगा। आप इन दोनों को एडअप कर दीजिए, तो मेजर एंगल DRE प्लस 110 इज इक्वल टू 180, ओके। और ये प्लस DRE, ये प्लस 110 अगर हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 110। सो DRE इज कम 70 डिग्री, ये कितना आएगा 70 डिग्री आएगा, ओके। अब आपको पता चल गया ये कितना है 70। अब देखिए आपको कंफर्म करना है तो 70 70 140 140 प्लस 40 180। अभी आपको पता चल गया कि ये एंगल कितना है 70 है, तो आप देख सकते हो कि एंगल ARE और DRE ये दोनों क्या है, एंगल इन लीनियर पेयर है। आप चाहिए तो इसे इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है। आप चाहिए तो इसको भी इक्वेशन भी कर सकते थे जो आपने मेनू निकाला, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते थे कि आपको 70 कहाँ से मिला। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर एंगल ARE प्लस DRE is equal to 180, and here you will write angles in linear pair। बताइए ARE हमें हमको DRE निकालना था, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है पहला वाला। दूसरा हमें ARE निकालना था, ARE यहाँ पे मिसिंग है, वैसे ही लिखिए ARE, but the measure of DRE we got here is 70, write down here 70। यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम 1, आपको ये पता चला। प्लस 70 को आप उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 70, और 180 में से अगर आप 70 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ARE विल कम 110। यहाँ पे आप देखना दूसरा भी निकाल दिया, ओके। नाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, आप देख सकते हो कि एक ट्राइंगल ABC आपको दिया गया है, इसमें एंगल C 70 दिया गया है, और जो इसके अंदर ये रे AO और रे BO इस एंगल A और एंगल B के क्या है बाइसेक्टर दिए गए, जो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं O पे। तो आपको बताना है कि AOB का मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको कैसे करना है कि आप इन ट्राइंगल ABC में आप एक काम करो, तीनों एंगल को जोड़ दो। आप तीनों एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। राइट हियर मेजर एंगल ACB प्लस मेजर एंगल CAB प्लस मेजर एंगल CBA इज इक्वल टू कितना आएगा 180। आप रीजन वापस वही लिखोगे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब बताइए ये कितना दिया गया है 70,
ठीक है। क्वेश्चन ये हमें मालूम नहीं, हम वैसे ही लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखते हैं, हमें मालूम नहीं है। 180 आप लिख सकते हो गिवन, ये किया गया है। ये +70 को अगर आप उधर लेकर के जाते हो, ये कितना होगा 180 माइनस 70, मतलब ये कितना आएगा 110। अब एक काम करता हूं, मैं इसके दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। देखो सब में मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ भी 1/2 में CBA, इसमें भी हाफ से, और 110 में भी हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बताइए अगर CAB का हाफ करो तो क्या आएगा OAB, क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे मेजर एंगल OAB, ठीक है। और इस CBA का अगर हम हाफ करेंगे तो क्या बनेगा OBA इज इक्वल टू, इसका हाफ से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 55। आप यहाँ पे लिख सकते हो because ray OAO and ray OB are the bisector of एंगल A and एंगल B, ठीक है। एंगल A और एंगल B के क्या है, वो बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये लेता हूँ ट्राइंगल AOB। तो इन ट्राइंगल AOB अगर आप तीनों एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। तो मेजर एंगल OAB प्लस मेजर एंगल OBA प्लस मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा 180। आप रीजन सेम लिखोगे, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जरा इसका देखो ना, OAB और OBA इसका टोटल कितना आया है 55। आई कैन राइट हियर 55 प्लस मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 एंड आई विल राइट हियर रीजन फ्रॉम 1 से मुझे पता चला कि ये दोनों एंगल का मेजर कितना है 55, ठीक है। नाउ दिस इज प्लस 55, उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -55। तो 180 माइनस 55। तो फाइनली मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 10 माइनस 5 7 माइनस 5 कितना होगा आपका 7 माइनस 5 2 125, ठीक है। 5 by 10 5 plus 2 7 plus 1 8, हाँ बराबर 125। yes. तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आपको एज यूजुअल इसे क्लास वर्क के बुक में लिखना है और बाय फ्राइडे आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में भेजना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।